Who protects the Constitution of India? Who ensures that no authority is above the law? The answer lies in one powerful institution, the Supreme Court of India. Welcome to this detailed journey into the Union Judiciary of India, the guardian of fundamental rights, the interpreter of Constitution, and the ultimate protector of justice. In this video, we'll understand Articles 120 to 144 of the Indian Constitution, including the appointment, removal of judges, judicial review, writ jurisdiction, advisory powers, Article 141 and 142, the doctrine of stare decisis, and landmark constitutional principles that shape Indian democracy. Starting with that, Union Judiciary has been enshrined in Part 5th of the Constitution. In Part 5th, specifically Chapter 4th. That means it is headed by the Union Judiciary, means the apex India's integrated judicial system, which is headed by Supreme Court. That means our apex court is Supreme Court. The सबसे largest, जो highest judicial body है, that is Supreme Court of India, and that is why we say that it is the guardian of Constitution, protector of fundamental rights, final interpreter of constitutional provisions, and highest court of appeal. So why I am saying these heavy words? Because we see it as the ultimate interpreter of the constitution and the final court of appeal. After this, appeal doesn't lies, so it is highest court of appeal. The decision given by Supreme Court will be full, final, and binding. Talking about from its establishment, which is given under Article 124, and power of judicial review, it is the indispensable pillar of India's constitutional democracy, and the reason is because this ensures rule of law, constitutional supremacy, and protection against arbitrary government action. Rule of law, I will again revise you the 3 pointers of rule of law given by A.V. Dicey, that is supremacy of the law, equality before law, and predominance of legal spirit. So this always prevails. Justice is delivered without any fear and favor, and rights of every citizen are inviolably protected by against any arbitrary government action. So this deals with the foundation of justice we are going to cover in the video. Moving forward, that how this establishment was there. So under Article 124, establishment of the Constitution of Supreme Court. That means under Article 124, Supreme Court of India was created. So in creation, it mentioned that there should be CJI and other judges. CJI and other judges, and how much number of judges will be there, this will be decided by Parliament. So when the Constitution came into force on 26 January 1950, that means originally there were CJI plus 7 other judges. CJI and 7 judges. But there were presently, after the so many, you can understand that because of burden, judicial workload, Parliament has expanded the bench, and now there are CJI and up to 33 judges. That means again, at present we are having CJI and 33 other judges. This is the maximum limit. So if I say overall strength of Supreme Court, that is, it is 34 judges maximum, including the Chief Justice of India. Now coming on to the age of the judges of Supreme Court is 65 years, right? 65 years, after 65 years, when they'll attain the age of 65 years, they will retire from their office. And once they are appointed, they cannot be removed. Only there is one process of removal, and they can be only removed through impeachment process, which is
constitutionally prescribed. Through impeachment, that means he will be removed from his office by an order of president, and president will address each house of parliament, and that each house of parliament should pass it by majority of total membership of that house, and it should not be less than 2 by third majority. That means you need special majority for removal of the judges, and the members of the house present and voting has to be presented to the president in the same session, and there are only two grounds under which the person can be removed. First is misbehavior and second is incapacity to perform the duties. Everything is mentioned here, that every judge before entering office he takes an oath or affirmation, and oath or affirmation is taken in front of president of India. And what kind of oath is there? That they will discharge their duties faithfully without fear, favor and affection or maleficent intention. Now comes 125. 125 talks about that what are the salaries, what are the allowances and pensions for the judges. So सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने भी जजेस हैं उनको सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज, लीव, पेंशन ये सब कुछ दिया जाएगा, एंड दिस इज़ डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ, और ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा. एंड व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी वोटेड इन पार्लियामेंट into each year. So that means it is not subject to the वोट. यहाँ पे हर बार पार्लियामेंट के सेशन में इस चीज़ के ऊपर कि जजेस की सैलरी हमें निकालनी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इस चीज़ पे वोटिंग नहीं होगी. रीज़न इज़ दैट कि ये रीज़न क्या होता है, बिकॉज ये जो खर्चे हैं दीज आर ऑलरेडी डिफाइंड, ये फिक्स्ड हैं, और ये जो सैलरीज जा रही है या जो कंडीशंस ऑफ सर्विस जो जा रही है इनका ऑलरेडी एक एक्ट पास्ड है, राइट. सो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट वाज पास्ड, subsequently amended, CGI and other judges receive significant remuneration commensurate with the dignity of their office. क्योंकि अब वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम ऐसे कोर्ट की बात करें विच इज़ द एपेक्स कोर्ट, तो वहाँ पे वंस अपॉइंटेड, वंस डिसाइडेड, तो उनकी जितनी भी सर्विस की कंडीशंस हैं, जितनी भी उनकी सैलरीज, पेंशंस या उनके अलाउंसेस बनते हैं, उनको हम चेंज नहीं करेंगे. इट कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज. उनके ऊपर हम इस चीज़ का डिसएडवांटेज नहीं डालेंगे विथ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री. सो Article 125 Clause 2 explicitly states that neither the salary nor the service condition of the judge shall be varied to his disadvantage after appointment. So this is because of कि every judge will be entitled for privileges and allowances जिनके लिए जो चल रहे थे जब उनको अपॉइंट किया गया था, तो उस चीज़ में हम किसी भी तरह से वेरिएशन नहीं लाएंगे. एंड द रीज़न इज़ कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. तो फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, सो दैट पॉलिटिकल प्रेशर, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस और जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेटिव कंट्रोल ना हो. इसलिए हम इस आर्टिकल 125 की इम्पोर्टेंस को क्लेम करते हैं. सैलरीज आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट कैन नॉट reduce salary after appointment. So there will be no annual voting in parliament on judges salary. Every year किसी भी voting की ज़रूरत नहीं है. Same is written here. It is mentioned here that it is not subject to a parliamentary vote. And the reason is कि complete interdependence of judiciary, because through financial security only judicial independence can be taken care of. Moving forward to appointment and removal of judges specifically. So in 124, though we have already covered that establishment and constitution, but there are two clauses which are most important for appointment and removal of judges. So clearly we'll discuss in detail here that how the judge can be appointed and how the judge can be removed. So first comes is the appointment process under article 124 clause 2. It says that
एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. पहली चीज़, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय वारंट. वारंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट अंडर हिज हैंड एंड सील, दैट मीन्स उनका साइन और सील लगा होगा. आफ्टर द कंसल्टेशन विद such judges of Supreme Court and High Court as the President may deem necessary. This means that he will be on the recommendations of the other Supreme Court and High Court judges. He will be appointing the judge of Supreme Court. For appointment of any judge other than Chief Justice, the Chief Justice of India must always be consulted. जब हम CJI के अलावा जो CJI प्लस 33 मैक्सिमम जजेस को जिनको हम चूज़ कर रहे हैं, इन जजेस को चूज़ करने में CJI को भी कंसल्ट करना पड़ेगा. नाउ कम्स कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कई बार चेंज किया गया है, इसीलिए ये 124 क्लॉज 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कई बार चेंज किया गया है, एवोल्यूशन हुआ है. जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तो कर ही रहा है आफ्टर कंसल्टेशन, बट प्रोसेस क्या था, इस चीज़ को बहुत बार चेंज किया गया है. नाउ देयर इज़ अ वर्ड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ कोलेजियम सिस्टम. कोलेजियम सिस्टम मीन्स it is a judge-led mechanism for appointment and transfer. Judge-led mechanism मतलब judges are involved. It was established through 3 landmark cases collectively known as 3 judges cases. 3 judges cases से ये decide हुआ that how you will be appointing these judges of Supreme Court. What is collegium system? What is the evolution? We will understand here. First case was SP Gupta versus Union of India 1981, and it is also called as first judge case. It held that consultation did not mean occurrence giving executive primacy. सो एग्जीक्यूटिव की जैसे देखो 3 ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जुडिशरी का एंड इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव को. सो दैट मीन्स पहले जज केस में आया कि हम एग्जीक्यूटिव को भी इन्वॉल्व करेंगे, उसकी ही प्राइमेसी होगी इन अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये चीज़ 1981 में आई, कंटिन्यू रही टिल 1993. 1993 में सेकंड जज केस आया जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993. यहाँ पे जुडिशरी ने गेन किया प्राइमेसी वेयर CJI का ओपिनियन वाज इम्पॉर्टेंट. ऊपर वाला जो केस था उसको अ काइंड ऑफ रिवर्सल मिला कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है तो CJI जो कि जुडिशियल पोस्ट है उस पर्सन की ही प्राइमेसी होनी चाहिए, राइट. सो काइंड ऑफ थोड़ा सा चेंज आया, एग्जीक्यूटिव से शिफ्ट होके शिफ्ट कह के जो हमारा जो प्राइमरी पर्सन है वो बन गया CJI. नेक्स्ट आता है थर्ड जज केस. थर्ड जज केस इज रीप्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998, जहाँ पे पहली बार कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. इन दिस कोलेजियम सिस्टम पहले तो CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कह लो बॉडी बनाई गई जिसको हमने बोला कोलेजियम. दिस इज़ अ बॉडी जहाँ पे CJI और 4 जजेस मिल के अपना ओपिनियन देंगे कि हमें किसे अपॉइंट करना है, एंड दिस इज़ द ओपिनियन विच इज़ बाइंडिंग, और ये कलेक्टिव होगा क्योंकि एज अ टीम काम हो रहा है, राइट. नेक्स्ट आता है NJAC. NJAC मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट. NJAC एक्ट 2014. NJAC एक्ट 2014 जब आया तो आपके बेयर एक्ट में 124A, 124B और C, दैट मीन्स NJAC का जो कमीशन है वो है क्या, उसमें कौन कौन होगा, मतलब उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, 124B में फंक्शंस क्या होंगे उस कमीशन के, एंड 124C पार्लियामेंट किस हिसाब से लॉज बनाएगा रिगार्डिंग NJAC. दीज आर्टिकल्स वर इंसर्टेड. NJAC ने किया क्या था, कोलेजियम सिस्टम को रिमूव कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था और एक 6 मेंबर कमीशन को इन्वॉल्व किया था जिसमें लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी ऐड ऑन किए गए थे. बट
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस आया, यानी कि फोर्थ जज केस आया, इसने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट इज़ वायलेटेड on the basis of hindering judicial independence which is a basic structure of the constitution। और इसकी वजह से एनजेएसी को डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव का जो रोल था दैट वाज मैक्सिमाइज्ड, विच वाज लाइक अ काइंड ऑफ कि आप जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस या जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हो, और वहाँ पे फिर आप एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व कर रहे हो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट प्लस इन्फ्लुएंस ऑल्सो। उसी इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बोला गया दैट इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो एनजेएसी को वॉइड किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और दोबारा से वही कोलेजियम सिस्टम री इन्फोर्स कर दिया गया। एंड दिस फोर्थ जज केस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स जुडिशरी फ्रॉम द पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, यानी अगर जिसकी गवर्नमेंट चल रही है अगर उसी के ही लोग अपॉइंट करेंगे जजेस, तो बट ऑब्वियस है कि इन्फ्लुएंस होगा, कुछ ऐसे केसेस पेंडिंग होंगे जो वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती होगी कि ये अगर इन पे डिसीजन आ जाए तो हमारी पार्टी का नाम होगा, हमारे लोग उधर बैठे हैं, तो इन दैट केस जुडिशरी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा सही करने के लिए एक थिन लाइन थी, उस थिन लाइन को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमने एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया और कोलेजियम सिस्टम को दोबारा से रीइंफोर्स कर दिया। I hope you are clear in the appointment process. Now coming on to the removal of judges which is given under Article 124 Clause 4. I told you जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हम रिमूव करेंगे तो पहली चीज़ तो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि रीज़न क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हम उस जज को इसलिए ला रहे हैं जिससे कि वो कह सको कि जस्टिस देने के लिए आया है और वो एपेक्स कोर्ट में बैठा हुआ है। तो अगर उसको रिमूव करना है प्रोसेस विल बी डिफ़िकल्ट, प्रोसेस विल बी टफ, बट प्रोसेस इज़ गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। अगर हमें उसको रिमूव करना है तो पहले तो एक ऑर्डर पास करेगा प्रेसिडेंट, राइट। पहले वो एड्रेस करेगा दोनों हाउसेस को उसी सेशन में, फिर एड्रेस करेगा और उन हाउसेस को बाय स्पेशल मेजॉरिटी, उन हाउसेस को उसी सेम सेशन में स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास करना होगा कि हम इस जज को रिमूव करेंगे। अब ये जो मेजॉरिटी है ये टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग पे होगा, जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोगों ने वोट किया है। इनके जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल है वो सिर्फ दो हो सकते हैं, पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एक एक्ट पास्ड है जो स्पेसिफिकली डिटेल्ड प्रोसीजर बताता है कि अगर हम ये इम्पीचमेंट प्रोसेस का मोशन अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये एटलीस्ट लोकसभा में 100 मेंबर्स के थ्रू होना चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के थ्रू पास होना चाहिए। एंड इट विल बी फॉलोड बाय द इन्वेस्टिगेशन बाय 3 मेंबर कमेटी इन विच एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। रीज़न इज़ कि हम इस कमेटी को क्यों बनाते हैं, इस कमेटी का काम है कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे दैट वेदर दिस पर्सन इज़ बीइंग गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी और नॉट। यहाँ पे एक पुराना देयर वॉज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट नोटेबल इम्पीचमेंट अटेम्प्ट एक बार किया गया था अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी इन 1993, जबकि उसमें कमिटी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें गिल्टी उन्हें पाया गया था, बट जो मोशन पास हुआ था दैट फेल्ड इन लोकसभा क्योंकि कांग्रेस पार्टी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एंड in this case it was a kind of near impossibility of judicial removal. It was seen that अगर हम पार्लियामेंट से पास नहीं कराएंगे तो हम जजेस का रिमूवल नहीं करवा सकते, राइट। सो इवन इफ इन्वेस्टिगेशन में चाहे निकल आए बट अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली तो जो जज है उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। सो द प्रॉब्लम इज़ द प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड द प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज रिमूवल रिक्वायर्स स्पेशल majority in both houses, same session approval and presidential order to pass the same.
तो इनका जो इम्पीचमेंट था जस्टिस वी रामास्वामी का, ये फेल्ड हो गया था बिकॉज इवन इफ द फाइंडिंग्स वर अगेंस्ट हिम. सो दिस मेक्स रिमूवल डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. आई होप ये अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल क्लियर होगा. Moving forward, qualifications and judicial independence. Again coming on to Article 124 Clause 3 जो बात करता है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन आती है दैट ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया. जब हम उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उन्हें अपनी कंट्री का यानी इंडिया का सिटीज़न होना इज़ इम्पॉर्टेंट. और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एपेक्स कोर्ट यानी जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, नेशनल इंटरेस्ट हैं, दैट शुड बी रूटेड. और वो इंडियाज़ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के जो मतलब हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस को एक्वायर करने जा रहा है. तो इन दैट केस दीज वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट शुड बी नेशनलाइज्ड इन नेचर. नेक्स्ट आता है दैट हाई कोर्ट जज होना चाहिए एटलीस्ट 5 साल के लिए. तो अगर कोई पर्सन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सीट पर बैठने, सुप्रीम कोर्ट के जज की सीट पर बैठने, तो वहाँ पे ही शुड हैव बीन द जज फॉर 1 और मोर हाई कोर्ट्स. अब ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टीन्यूअस रहा हो. ओवरऑल उसके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स का टेन्योर होना चाहिए कि वो एलिजिबल हो जाए इस अपॉइंटमेंट के लिए. ये रीज़न क्या है, इसको 5 साल का हमने क्यों इस 5 ईयर्स जज के लिए हमने उसे कंपेल किया? द रीज़न इज़ दैट द पर्सन शुड हैव द डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग. और वो क्या है, आप एक लेवल के ऊपर जा रहे हो. दैट मीन्स यू आर गोइंग फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सो दैट यू कुड बी एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ इन सुप्रीम कोर्ट बेंच. नेक्स्ट आता है, अगर 5 साल का हाई कोर्ट जज नहीं है तो फिर और में आ जाएगा हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. तो ये 3 चीज़ें क्या है, और में चलेंगी, राइट. ये कंपल्सरी है दैट ही शुड बी द सिटीज़न. यहाँ से और हो जाएगा, यहाँ पे और हो जाएगा, बट दिस इज़ कंपल्सरी, यहाँ पे एंड है. नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट एडवोकेट 10 ईयर्स का होना चाहिए. जैसे एक पर्सन है, ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ 2 और मोर जो हाई कोर्ट्स हैं इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन द एग्रीगेट क्वालिफाइज. यानी 10 साल के लिए एटलीस्ट उसने एडवोकेसी करी होनी चाहिए. रीज़न इज़ कि अगर जो पर्सन है वो एडवोकेसी कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ हैविंग द डिस्टिंग्विश्ड ट्रैक रिकॉर्ड बार के ऊपर, एंड ही कैन डायरेक्टली ज्वाइन द सुप्रीम कोर्ट ब्रिंगिंग द डीप प्रैक्टिकल लीगल एक्सपर्टीज़ एंड कोर्ट रूम एक्सपीरियंस टू द सुप्रीम कोर्ट. तो हम एडवोकेट्स को भी चांस देते हैं. नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी कि प्रेसिडेंशियल ओपिनियन. तीसरा पाथवे क्या है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट की नज़र में हो. यानी अ पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है. रीज़न इज़ कि हम इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्रिशनरी रखते हैं, जहाँ पे कोई भी स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो भी अब वो हो सकता है जज या एडवोकेट ना हो, बट वो ऐसे पर्सन हैं जिनके पास प्रैक्टिकल और बहुत ही डीप रूटेड नॉलेज है. तो उन पर्सन को भी हम उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए चुन सकते हैं. और ये जो चुनने का काम है दैट इज़ गिवन टू प्रेसिडेंट. सो इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू सोनली टू कोर्ट रूम प्रैक्टिस, एंड it can also be like you can include legal scholarship so that the contribution is towards the constitutional adjudication which requires the eminent scholars to become judges through this particular process. तो ये जो eminent scholars को यूज़ करते हैं, eminent scholars को चूज़ कर रहे हैं, ये of course it is rarely used but फिर भी the clause is given. तो it ensures the competence, it ensures the legal expertise and also the constitutional understanding so that the Supreme Court could give the decisions for फ्यूचर फॉर फर्दर विच जिसको हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर दिया. सो फॉर दैट केस वी नीड दीज पीपल हु आर एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया. नेक्स्ट आते हैं 127.
124 clause 7 talks about post retirement bar on practice. पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं एंड दीज रेस्ट्रिक्शंस आर कि रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, दैट मीन्स कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है उनके ऊपर एक प्रोहिबिशन लगा है कि वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. एंड किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस का मतलब नॉट इवन एनी कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल, एनी कमीशन और एनी काइंड ऑफ लाइक हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के कोर्ट में जाके वो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस या प्लीड नहीं करेंगे बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस मीन्स कि नॉट इवन अ हाई कोर्ट और अ लोअर ट्रिब्यूनल, राइट. बट यहाँ पे हम कभी कभी, दिस इज़ द एक्सेप्शन विच आई वॉज टेलिंग यू, कि कभी कभी क्या होता है, देर आर सर्टन ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जहाँ पे हम इन जजेस को एक्वायर करते हैं. दे कैन सर्व दीज पर्टिकुलर बॉडीज़ सो दैट ये जो गवर्नमेंट के थ्रू जो बनाई जाती हैं, जो कमीशंस, ट्रिब्यूनल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाते हैं, इसमें दे कैन पार्टिसिपेट. तो ये बन जाता है एक्सेप्शन. बट किसी भी लोअर कोर्ट, लोअर ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में दे कैन नॉट गो एंड प्रैक्टिस. रीज़न क्या है इस चीज़ का, जिससे कि हम इम्पार्शियलिटी जैसी जो चीज़ें हैं, या कह लो बायसनेस ड्यूरिंग सर्विस है, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकें. सो उस केस में देखो, अगर आप इस चीज़ पे नहीं रखोगे तो जो पिछले वाले जजेस हैं उनका जो टेन्योर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी कि हम पोस्ट रिटायरमेंट अपने कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. अगर हमने उन पर बार ही लगा दिया कि आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, सो इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, किसी भी तरह का जब बार लगा देगा तो वो एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है कि अब उनको आगे कुछ ऐसा करना ही नहीं है. तो एक तरह की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रुक जाएगा. सो इसीलिए बाइसनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और आगे चल के जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो नहीं मिलेंगे. रीज़न क्या है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में इंक्रीज़ करना. अगर पब्लिक का या कह लो जो लोग हैं, जो द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, अगर उनका कॉन्फिडेंस अपनी जुडिशरी पे नहीं होगा तो फिर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इनफ कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी हमने कर रखी है राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, वो कम्प्लीटली मिल पाएगी. अब नाउ कम्स वाई इंडिपेंडेंस मैटर्स. ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है, इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज ऑफ जज, कि हम जज को प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं, बट वी आर गारंटीइंग समथिंग टू पीपल ऑफ इंडिया. और हम गारंटी क्या कर रहे हैं कि आपके जो पार्ट 3 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स प्लस जो आपके अदर लीगल राइट्स हैं, उनका कंप्लीट प्रोटेक्शन इज़ टेकन केयर ऑफ बाय अथॉरिटीज़ जो जुडिशियल हैं. अब अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो ये जो जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स और स्टेट्स के बीच में, या आपस में स्टेट्स के बीच में, इसको इम्पार्शियली, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर इस चीज़ को डिसाइड कर पाएगी. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने इस टाइम पे इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया. यानी कि ऐड ऑन क्या किया, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उन पे पोस्ट रिटायरमेंट बार लगा दिया जिससे कि हम इम्पार्शियलिटी ना हो, और उनके टेन्योर को सिक्योर कर दिया, सैलरी को भी सिक्योर कर दिया, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास कम्प्लीटली है. तो इन अगर चीज़ों को आप कम्प्लीटली एक सर्कल में देखोगे, सो नाउ अ ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम हैज़ बीन स्टैब्लिश जो कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करता है. सो इन दिस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है इन 1975 दैट जुडिशल इंडिपेंडेंस इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और क्योंकि बेसिक फीचर है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज नहीं किया जा सकता. पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि इस बेसिक फीचर को ये किसी भी तरह से छेड़े. आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ. Moving forward to Supreme Court's jurisdiction and powers. When it comes to the jurisdiction and powers, articles are from Article 131 to Article 136. Talking about अगर there is a kind of, अभी overall मैं अगर बताऊँ तो 3 तरह के jurisdictions होते हैं.
पहला जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल, नेक्स्ट इज एपिलेट एंड थर्ड इज एडवाइजरी। पहला आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 131। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जनरल मतलब होता है जहाँ पे जिस कोर्ट में सबसे पहले इंस्टेंस पे केस गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बार केस कब जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में देखो, पहली चीज़ तो सिर्फ वही सारे केसेस जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही होगी और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात होगी। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स बिटवीन, किस किस के बीच की बात हो रही है? क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकता है, बट डिपेंडेंस किस पे है कि जब जो इश्यूज़ हैं वो किसके किसके बीच है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वर्सेस में एक या एक से ज़्यादा स्टेट है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड, वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक दो स्टेट्स एक साइड पे हैं वर्सेस एक या एक से ज़्यादा स्टेट अदर साइड पे हैं। एंड थर्ड इज़ टू और मोर स्टेट्स इंटर से, मतलब एक साइड दो या दो से ज़्यादा स्टेट है वर्सेस में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स हैं। तो ये तीन केसेस में जो पहला और ओनली कोर्ट होगा जो इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स को रिकग्नाइज करेगा, उनको रिजॉल्व करेगा, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा नो अदर कोर्ट कैन एंटरटेन दीज काइंड्स ऑफ केसेस। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है, दिस विल एक्सक्लूड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आने के पहले डिसाइड हो गए थे। अगर कोई ऐसी ट्रीटी या कोई ऐसे अग्रीमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के आने के पहले ही डिसाइड हो चुके थे, बिफोर द ऑपरेशन, लाइक कह सकते हैं कि वो पहले से ही आ गए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर स्टिल इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट, तो हम इस जुरिस्डिक्शन में इसको एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे नोटेबल केसेस हुए अंडर आर्टिकल 131 जिसमें वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हुए हैं, जैसे कावेरी नदी वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा रिवर डिस्प्यूट्स। तो इन चीज़ों को लेके जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेगा। सो ये रीज़न क्या है, यहाँ पे लोअर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इससे होगा क्या, फेडरल बैलेंस क्रिएट होगा। फेडरल बैलेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उन डिस्प्यूट्स को सुन रहा है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में है या स्टेट्स इंटर से है, आपस में स्टेट्स के बीच में है। तो फेडरल बैलेंस को इन्वॉल्व करना या फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने का काम यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका 132 टू 135 विच टॉक्स अबाउट एपिलेट जुरिस्डिक्शन। सीधे सीधे सिंपल समझो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट से केस डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो पहली बार केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया है बट बाय अपील आया है। तो अपील से जो भी केसेस आएंगे उनको हम बोलेंगे उन केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। 132 इन्वॉल्व करता है वो अपील्स विच आर रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। सो ये किस तरह की अपील है, सुप्रीम कोर्ट अपील लेगा फ्रॉम एनी हाई कोर्ट। अब वो हाई कोर्ट जजमेंट सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, और एनी अदर प्रोसीडिंग्स इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज। इसके अलावा भी हो सकता है अगर हाई कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट अटैच कर दिया है दैट दिस पर्टिकुलर जो केस है इट इज़ फिट फॉर अपील, तो वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में थ्रू एपिलेट जुरिस्डिक्शन चले जाएंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इन केसेस में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेंशन होना चाहिए एंड स्पेसिफिकली इट शुड बी रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है तो ही वो क्रिमिनल और सिविल अपील्स ऊपर जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास थ्रू हाई कोर्ट। 133 टॉक्स अबाउट सिविल अपील्स। पहले क्या होता था कि सिंपली जो हमारे सिविल अपील्स थे, अगर 20,000 के ऊपर का अगर कोई अमाउंट होता था तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था, हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता था। बट अब ये जो प्रैक्टिस थी ये जनरल प्रैक्टिस थी, अब इस प्रैक्टिस को हमने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है दैट वेदर दिस केस इज़ हैविंग द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस और नॉट। अगर किसी सिविल अपील में सब्सटैंशियल क्वेश्चन मतलब मेजर पार्ट जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ बना रहा है, आई होप
होप यू पीपल आर एटलीस्ट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो उस चीज़ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर कोई बहुत सब्सटैंशियल पार्ट है तो वहाँ पे हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि नहीं, इस चीज़ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका से इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो उस पर्टिकुलर केस को सर्टिफाई कर देगा और वो केस सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। 134 टॉक्स अबाउट जहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स में अपील जा रही है। क्रिमिनल मैटर्स में अपील तब जाएगी जब देखो सबसे पहले लोअर कोर्ट से केस गया हाई कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट ने क्या किया, उसको कन्विक्शन दे दिया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे कन्विक्शन दिया हो। जब ये हाई कोर्ट के पास गया तो एक्विटल हो गया, यानी रिवर्सल ऑफ द ऑर्डर। ऐसे केसेस जहाँ पे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्यूज्ड को जो भी इसका कन्विक्शन हुआ था उसको जब रिवर्स कर दिया, यानी उसका एक्विटल कर दिया, तो वो ही केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास क्रिमिनल अपील में जाएंगे। 135 talks about that preserves jurisdiction vested in federal court before the constitution's commencement, यानी जो पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था, फेडरल कोर्ट के पास जितनी भी पावर्स हुआ करती थी एज अ एपेक्स कोर्ट, वही सेम पावर्स अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करेगा अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज। तो जितना भी 133, 134 जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ये जितने भी फेडरल कोर्ट्स के पास जो पावर हुआ करती थी सेम अप्लाई कर दो सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये जितने भी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, थ्रू दिस सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल एपेलेट कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जितनी भी सिविल, क्रिमिनल, सर्टिफाइड अपील्स आई हैं, अब जो डिसीजन होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशल लीव टू अपील विच इज़ गिवन अंडर 136, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 136 में सुप्रीम कोर्ट अपील के थ्रू किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से केसेस ले सकता है। नाउ दिस SLP, हम इन शॉर्ट इसको SLP बोलते हैं, स्पेशल लीव पेटिशन बोलते हैं। स्पेशल लीव टू अपील में होगा क्या, मोस्ट पोटेंट एंड एक्सपेंसिव क्यों बोला गया है, बिकॉज एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का कि ये कभी भी SLP या SLA दैट मीन्स स्पेशल लीव टू अपील ग्रांट कर सकता है फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी डिस्क्रिशनरी पावर है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। ये जुरिस्डिक्शन क्या है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को सुन सकता है, और वो कैसे सुनेगा, ये पावर उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर्स, बट ये किसी भी कोर्ट से, यानी किसी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, यानी ट्रिब्यूनल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी से वो केसेस को लेकर उसको चेक कर सकता है और उसको करेक्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 136 को बहुत बार यूज़ किया है, और ये इसकी एक रेजिडुअरी पावर है, जहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, क्या क्या ठीक करेगा, जहाँ पे ग्रेव इनजस्टिस हो गया हो या फिर कुछ ऐसे एरर्स हो गए हो, दैट मीन्स सीरियस लीगल एरर्स हो गए हो जहाँ पे हमें उनको ठीक करना है। तो सुप्रीम कोर्ट इन दो चीज़ों को करने के लिए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करती है और उस केस को वहाँ से लेके डिसाइड करती है। इट अप्लाइज टू सिविल, क्रिमिनल, रिवेन्यू एंड इवन सर्विस मैटर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का कह लो यूनिवर्सल कोर्ट, यूनिवर्सल एक कह लो अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पे यूनिवर्सल कोर्ट है, जहाँ पे लास्ट ऑप्शन, लास्ट रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। एक केस है एन सूर्यकला वर्सेस ए मोहनदास 2007 का, जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को क्लैरिफाई किया गया था कि जब कोई स्पेशल लीव डिसाइड होगी तो कौन से प्रिंसिपल्स को हम चेक करेंगे। सो यू कैन गो एंड रीड दिस केस इन डिटेल अबाउट द फैक्ट्स एंड व्हाट वाज हेल्ड इन दैट केस, बट टिल देन SLP is the very कह लो grave power where any judgment, decree or any determination, any order, any sentence passed by any court or tribunal can be taken by Supreme Court on its discretion, और वो उसको special leave provide करेगा। But there is one more proviso that ये चीज़ें armed forces पे apply नहीं होंगी। तो ये जो भी चीज़ें अभी ऊपर हमने बात करी, ये किसी भी तरह से अगर
आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है तो वो केसेस यहाँ पे नहीं जा सकते, वो अपने ही जो आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस के जो अपने खुद के ट्रिब्यूनल्स हैं वो वहीं तक ही लिमिटेड रहेंगे. Next, coming on to the other topic, which is judicial review. That means the ultimate check which is applied by the guardian of fundamental rights, or you can say the ultimate or apex court of territory of India. There is a combination of 3 articles, that is Article 13, Article 32 and 226 for striking down the laws which are against or unconstitutional or inconsistent with the constitutional provisions. Coming on to Article 13, we have discussed Article 13 in my previous videos in part 3 of fundamental rights. Still coming here to make you understand, to make you, I am giving you the overview of Article 13, that why it is important. Article 13 declares the law inconsistent with fundamental rights. So any law which is violating fundamental rights becomes void here, and it includes ordinances, orders, bylaws, rules, regulations, notifications, customs and usages, ensuring no legislative or executive action can escape constitutional scrutiny. So here in these 3 bodies, legislative, executive and judiciary is playing a role to apply a check on the actions of these 2 bodies. And here when it comes to the definition of state, that in Article 13 we are saying state is having the like you can say the guaranteeing of the fundamental rights is done by state. So Article 12 is the one which will define the term state, and I told you in the previous class also that state includes union government, state government and authorities, parliament involved with this union only, state legislatures with state government, and all local and other authorities. So all local is the third one, and fourth is other authorities. Other authorities is explained by so many different judicial interpretations, and after all the judicial interpretations, every body, whether it is private or it is public, that if it is attached, if the government is attached with that body, it means that it can be counted in terms of that it is having the duty as a state to not to violate the fundamental rights of any person, plus to give protection to those fundamental rights. Next, coming on to Article 13. In this, doctrine of severability was also evolved. Doctrine of severability means that it is allowing the court to strike down only unconstitutional part of statute while keeping the rest operative wherever possible. This makes judicial review a scalpel rather than a hammer, that is surgical rather than wholesale. This means अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जितना भी है उसको हटा दो और बचा हुआ जो स्टैचूट है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा. बट इन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दीज 2 पार्ट्स शुड बी सेपरेबल. अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है, जैसे पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, एंड इन दिस पार्ट 2 इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो पार्ट 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे, वॉइड कर देंगे, और पार्ट 1 एज इट इज़ कंटिन्यूएंस में रहेगा. बट दिस इज़ पॉसिबल जब हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, इसको सेपरेट कर पा रहे हैं. देयर विल बी द सिचुएशंस जहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेट नहीं हो सकता, इट इज़ अटैच टू इट. तो अगर पार्ट 1 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया तो ऑटोमेटिकली पार्ट 2 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. कभी कभी ये जो पार्ट 2 है दैट इज़ हैविंग द सब्सटैंशियल पार्ट, और पार्ट 1 इज़ नथिंग विदाउट इट. तो अगर पार्ट 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करोगे तो पार्ट 1 ऑटोमेटिकली गेट्स ऑफ विदाउट एनी यूज़, इट विल बी ज़ीरो. तो इन दैट केस सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है. तो सेवरेबिलिटी अप्लाई हो रहा है उन चीज़ों पे जहाँ पे हम स्कैल्पेल की यूज़ से हम एक कह लो सर्जरी कर रहे हैं, जहाँ पे हम इस दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको डिलीट कर रहे हैं. वी आर स्ट्राइकिंग डाउन दैट पर्टिकुलर स्टैच्यूट्स, उसके प्रोविजंस. बट द पार्ट विच इज़ प्रॉपर, विच इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो एज इट इज़ ऑपरेशन में रहेगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि आर्टिकल जो 13 है इट टॉक्स अबाउट कि कौन से लॉज
हम लॉज किसको बोलेंगे, एक होता है लॉज, एक होता है लॉज इन फोर्स। लॉज हो गए जो सिंपली लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट है। लॉ इन फोर्स मतलब वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले से चल रहे थे बट वो अभी भी कंटिन्यूएंस में हैं। तो अब अगर वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएंगे प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 में तो दे शैल बी वॉइड। और कब तक वॉइड रहेंगे, एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी तब तक वॉइड रहेंगे। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जब तक इनकन्सिस्टेंट है तब तक वॉयलेशन है, तब तक प्रोविजंस इनकन्सिस्टेंट रहेंगे। बट जैसे ही वो इनकन्सिस्टेंसी हट जाती है तो उसके ऊपर से एक्लिप्स हट जाएगा और वो एज इट इज़ नॉर्मल लॉ की तरह कंटिन्यू कर जाएंगे। तो आर्टिकल 13 इज़ द मेजर आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 32 विच इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेटेड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar, and why it is called so, because it guarantees every citizen the right to move to Supreme Court directly for the enforcement of their fundamental rights. Enforcement means कि आपको प्रोटेक्शन जो मिली हुई थी आप उसको एनफोर्स करा रहे हो क्योंकि आपके राइट का वायलेशन हो गया है। सो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्शियोररी। लास्ट वीडियो इज कम्प्लीटली ऑन दीज 5 रिट्स ओनली। और जो भी अप्रोप्रिएट होगी सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को इशू करेगा अगेंस्ट द स्टेट। सो दिस मीन्स दिस आर्टिकल इज डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन। इसी के कॉन्ट्ररी तो नहीं कहेंगे, इसी के कंट्रास्ट में देर इज़ आर्टिकल 226 जहाँ पे यहाँ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है। सिमिलर पावर्स हैं, थोड़ी सी वाइडर है क्योंकि यहाँ पे रिट्स इशू करने की जो पावर है हाई कोर्ट के पास वो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे भी है प्लस एनी अदर पर्पस, यानी जो आपके दूसरे लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्रिएट हो रहे हैं उस पर भी एड ऑन हो जाएगी। सो ये दो जो सिस्टम्स हैं आर्टिकल 32 और 226 ये 2 टीयर्ड सिस्टम है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक्सेसिबल टू एवरी सिटीजन। दिस मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन है, देखो 32 और 226 दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स पे या किसी भी अदर राइट्स के ऊपर। ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि उसके पास जो केसेस का जो अम्ब्रेला है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 32। अब 32 कम ही होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सिंगल कोर्ट है। हाई कोर्ट्स क्या है, अलग अलग स्टेट्स के पास अपनी अपनी हाई कोर्ट्स हैं। ऑप्शन है पर्सन के पास, जैसे मान लो मेरा एक राइट इन्फ्रिंज हुआ फंडामेंटल राइट, मेरे पास ऑप्शन है आई कैन डायरेक्टली गो टू आर्टिकल 32 और अपना रेट पेटिशन मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दूँ, बट यहाँ से जो डिसीजन आएगा दैट विल बी फाइनल। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है आर्टिकल 226 जहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के ऊपर आई कैन फाइल अ केस। अब मेरे पास अगर ये ऑप्शन है 226 का तो पहले आई गो टू हाई कोर्ट, यहाँ से डिसीजन आया मुझे अच्छा नहीं लगा, आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। एक ऑप्शन अपील का खुला रहता है। बट नाउ दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन जो केस फाइल कर रहा है कि उसको हाई कोर्ट जाना है या फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है एपेलेट जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा सिस्टम अपनाओ। हालांकि दोनों में ही जस्टिस विल बी एक्सेसिबल इन बोथ द केसेस क्योंकि यू आर गोइंग फॉर योर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आता है इसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस से आया था। 13 जजेस की बेंच थी, उसमें 7:6 मेजॉरिटी से ये डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। 368 बताया मैंने अमेंडमेंट का आर्टिकल है, या तो सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन से वो इस चीज़ को चेंज कर सकता है। बट इन्होंने क्या किया, एक फ़िल्टर लगा दिया कि आपको जितने भी आपको करने हैं आप हर तरह का अमेंडमेंट या हर तरह का चेंज कर सकते हो। बट ध्यान में क्या रखा है कि एक अमेंडमेंट का जो फिल्टर है दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। इस फिल्टर से जो निकल के आ रहा है वो आपके लॉज हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज नहीं करना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, इसेंशियल फीचर्स का डिस्ट्रॉय नहीं करना है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इस केस में बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट्सेट्रा। इसके बाद 2 और केसेस आए थे, मिनर्वा मिल्स वर्सेस, यू कैन राइट मिनर्वा मिल्स केस
और एक था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण. These two were the cases where the expansion of the list of features was expanded कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें आ सकती है. तो बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल मीन्स है इट इज़ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी फ्रॉम मिस यूज़ ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट. इसीलिए चेक लगाया जाता है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, बेसिक स्ट्रक्चर, दीज ऑल व्हेन यू कंबाइन इट विल फॉर्म, ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे जुडिशरी इज़ अ बॉडी जिसका काम है पूरी तरह से प्रोटेक्शन देना टू द लॉज, टू द people and to the violation, if there is any violation, to provide the specific remedies towards it. नेक्स्ट अब हम आते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज मेंशन्ड अंडर 143 आर्टिकल एंड 143 आर्टिकल सेज दैट कि वेन एवर इट इज़ अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. पावर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब उनकी पावर है कि जब वो चाहें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे अपनी किसी भी तरह की ओपिनियन ले सकते हैं. राइट नाउ देखो एडवाइजरी होगा, बाइंडिंग नहीं होगा. राइट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, बाइंडिंग नहीं होगा. दिस मीन्स कि प्रेसिडेंट की पावर है, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो विच इज़ रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो सुप्रीम कोर्ट से उनका ओपिनियन मांग सकते हैं. राइट अब देखो ओपिनियन मांगने का मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपका से क्या है, उस चीज़ का जो आंसर है वो सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है. ऑफकोर्स ये अब लीगल इन नेचर ही होगा. अब आते हैं आर्टिकल 143 के क्लॉज 1 में विच सेज दैट कि पार्लियामेंट किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पे बात कर सकता है ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सुनने के बाद एज इट थिंक्स फिट वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा अपने ओपिनियन की. नाउ द वर्ड इज़ मे प्रेजेंट हियर. मे मतलब कोर्ट का डिस्क्रिशन है. कोर्ट का डिस्क्रिशन क्या है कि वो डिक्लाइन भी कर सकता है ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को या फिर पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चंस को विच आर नॉट सूटेबल फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन. तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है, डिस्क्रिशन है कि वो इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करना चाह रहा है या फिर नहीं करना चाह रहा. आर्टिकल 143 का क्लॉज 2 कहता है दैट प्रेसिडेंट शैल रेफर एनी डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 131 विच इज़ रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज़. ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है और उनसे उनकी ओपिनियन ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट. बट ये जो रेफरेंस जा रहा है या जो ओपिनियन जा रहा है दीज आर मैंडेटरी, रिमूविंग एनी डिस्क्रिशन ऑन ईदर साइड. नाउ इट कम्स, देखो एडवाइजरी है तो एडवाइजरी का मतलब एक एडवाइस दी जा रही है, बाइंडिंग नहीं है. बट क्योंकि ये आ किस कोर्ट से रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट जो कि कह लो कि एक तरह का ऐसा बॉडी है जो सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी है, वहाँ से आ रहा है. तो इट होल्ड्स दैट मच इम्पॉर्टेंस कि वो जो ओपिनियन या वो जो एडवाइस आ रही है दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. कई बार प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस लिए गए हैं जैसे केरला एजुकेशन बिल 1958, द स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1992 एंड सबसे इम्पॉर्टेंट द स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2012 विच वॉज रिलेटेड टू 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन. तो इस चीज़ पे कई बार एडवाइस ली जा चुकी है. और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का काम क्या है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना, अ काइंड ऑफ ब्रिज हैज़ बीन मेंटेन्ड बिटवीन दीज टू. नाउ कमिंग ऑन कि नेचर एंड बाइंडिंग फोर्स. नेचर एंड बाइंडिंग फोर्स आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट बाइंडिंग बट इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर. प्रेसिडेंट इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट है वो लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो कोर्ट के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर ही ले. बट चीज़ें क्या होती हैं, देखो जुडिशियल बॉडी से, एपेक्स बॉडी से जब चीज़ें जारी होती हैं तो आप यू कैन नॉट इग्नोर इट. राइट क्योंकि वो सबसे टॉप अल्टीमेट अथॉरिटी है. तो यहाँ पे जो वेटेज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन गया है उसके पास इट इज़ हैविंग द अ काइंड ऑफ डेप्थ ऑफ रीजनिंग अटैच टू इट. तो पॉलिटिकली इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं इनको इग्नोर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि डिफेंस में आपके पास बहुत कम चीज़ें होंगी. राइट दूसरी चीज़, ऑल जजेस पार्टिसिपेट इन द एडवाइजरी रेफरेंस. तो बेंच हियरिंग नहीं होती है बट देयर इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ जजेस जो उस टाइम पे होंगे, वो अपना कलेक्टिव ओपिनियन देते हैं.
अब यहाँ पे इंडिविजुअल जजेस अपने अपने डिसेंटिंग नोट्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट एक कलेक्टिव ओपिनियन जाता है विच इंश्योर्स द मैक्सिमम अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी फॉर एडवाइजरी ओपिनियन रेंडर्ड। सो थ्रू दिस करते क्या है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए और किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो, इसलिए हम करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा और अगर मान लो पॉलिटिकली चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं, चीज़ें अगर अलग जा रही है एज़ कम्पेयर टू द जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कह रहे हैं, तो उससे होगा क्या, इट विल एस्केलेट इनटू अ फुल फ्लेज्ड लिटिगेशन। एक केस आ जाएगा, कह लो कि कोई एक नया फ्रेश केस अप्लाई हो जाएगा, एक इशू क्रिएट हो जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ले लिया जाता है। नेक्स्ट है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स आर्टिकल 141 बाइंडिंग प्रेसिडेंट एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या कहता है, 141 टॉक्स अबाउट कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। दिस मीन्स कि जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे रहा है, जो भी चीज़ें बता रहा है, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस मीन्स दिस एस्टैब्लिशेज द फाउंडेशन फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस का मीनिंग है दैट it involves to stand by decided cases. Stare decisis, stand by decided cases. This means कि courts प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस को फॉलो करते हैं वाइल डिसाइडिंग द सिमिलर फ्यूचर केसेस। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, जो सबसे हायर कोर्ट है, ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट है। तो कोर्ट शुड मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी इन द लॉ बाय फॉलोइंग अर्लियर जुडिशियल डिसीजन। तो लोअर कोर्ट मस्ट फॉलो द हायर कोर्ट्स एंड व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट दे मस्ट फॉलो द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है, ये हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से चलता है, वर्टिकल भी, वर्टिकल मतलब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और ये वर्टिकली भी चलेगा। वर्टिकली मतलब डिफरेंट हाई कोर्ट्स, डिफरेंट लोअर कोर्ट्स, एक दूसरे के जो बेंचेस हैं दे विल कोऑर्डिनेट एंड दे विल फॉलो द अर्लियर बेंचेस। यहाँ पे ऑल कोर्ट्स का मतलब क्या है, इट एनकम्पास ऑल और एवरी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल इन द कंट्री, हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट्स तक विच आर हैविंग सिविल एंड क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। सो नाउ हियर इट मेंशंस कि सुप्रीम कोर्ट का एक बाइंडिंग रूलिंग है कि जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आएंगे दे कैन बी टेकन एज अ लॉ फॉर फ्यूचर टाइम। इससे होगा क्या, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, जुडिशियल टाइम बचेगा और पब्लिक कॉन्फिडेंस जो जुडिशरी में है वो मेंटेन रहेगा। बट समटाइम्स ऐसा एकदम कंपलसरी नहीं है कि फॉलो करना ही है। समटाइम्स द कोर्ट कैन इटसेल्फ डिपार्ट फ्रॉम इट्स ओन अर्लियर डिसीजन एंड ओनली थ्रू अ लार्जर बेंच। कभी कभार अपने जो डिसीजन दिए हुए उनसे भी उनको भी चेंज किया जा सकता है, बट जितनी बेंच उधर बैठी हुई थी उससे लार्जर बेंच इसको डिसाइड करेगी। तो अगर बात आता है लॉ डिक्लेयर्ड, दिस मीन्स यहाँ पे हम रेशियो डेसिडेंडी की बात नहीं कर रहे हैं। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है द रीज़न फॉर द डिसीजन, एनी लीगल प्रिंसिपल और रूल जो कोर्ट के डिसीजन का बेसिस बना है। इट इज़ द बाइंडिंग पार्ट ऑफ अ जजमेंट जिसको लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए। सो यहाँ पे हम रेशियो डेसिडेंडी की बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योरली थिंग विच इज़ कि एक डिसीजन डिसाइडेड केसेस है उससे हमें स्टैंड करना है। एक टर्म और आता है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मतलब ऑल द इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशंस विच आर नॉट बाइंडिंग। ये सिर्फ परसुएसिव होती है, जिससे यू आर जस्ट सीइंग कि मतलब अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड थ्रू आउट द पासिंग एंड दे आर नॉट परसुएसिव, स्ट्रिक्टली बाइंडिंग नहीं होती हैं, बट दे आर कैरिंग द वेटेज क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से आई हुई है। तो दीज थ्री टर्म्स कैरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट से निकल के आया हुआ है, राइट। सो दिस होल्ड्स द पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस, द मेजर ओवरव्यू ऑफ दिस आर्टिकल, जहाँ पे हम एक तरह से अब जो डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको बाइंड करवा रहे हैं फ्रॉम ऑल कोर्ट्स, राइट। स्टेयर डिसाइसिस मतलब फॉलो करो प्रेसिडेंट्स को, रेशियो डेसिडेंडी बाइंडिंग लीगल प्रिंसिपल्स, ऑबिटर डिक्टा मीन्स परसुएसिव ऑब्जर्वेशंस। इससे होगा क्या, यूनिफॉर्मिटी, सर्टेनिटी और कंसिस्टेंसी एज इट इज़ बनी रहेगी।
नाउ कमिंग ऑन टू 141 कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो यूनिफॉर्मिटी बन रहा है अक्रॉस द कंट्री। अगर सिटीज़न है तमिलनाडु का, सेम इंटरप्रिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पर्सन के साथ होगा। प्रिडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी बनी रहेगी। जो लॉयर्स और लिटिगेंट्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो पुराने प्लान ऑफ एक्शन जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया था उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाएगी फ्रॉम द प्रीवियस केस लॉज। एंड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ अ ट्रूली लॉ मेकिंग बॉडी इन सब्सटैंटिव सेंस। अब चेंज तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ हैविंग द मेजर पार्ट इन चेंजमेंट ऑफ द लॉज, क्योंकि बता रहा है ना कि इस लॉज में इट इज़ इनकन्सिस्टेंट, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसको ठीक करना है, इसको रिकमेंड करना है। तो ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट से जा रही है। अब ऑफकोर्स एप्लीकेबिलिटी वो पार्लियामेंट में हो रही है बट इनिशियल स्टेज इज़ विद द सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ ऐसी जो रूलिंग्स थी जैसे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया, आर्टिकल 21 को और एक्सपैंड किया गया एंड इट इंक्लूडेड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये चीज़ें किसने बताई? सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि आप देखो आपके आर्टिकल में 21 में सिंगल लाइन लिखी हुई है, इंटरप्रिटेशन तो उसका बहुत ज़्यादा है, तो वो इंटरप्रिटेशन का काम है सुप्रीम कोर्ट का। वो आया कहाँ से है? थ्रू दिस आर्टिकल 141, जहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी यानी उसका एक्सपेंशन किया है और आगे के केसेस के लिए अब इट विल इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अब इसमें क्या क्या गाइडलाइंस ले करें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वर्क प्लेस पे होता है तो उसकी गाइडलाइंस है, इंश्योर करना है वर्क प्लेसेस को कि वो किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिससे कि वुमेन को प्रोटेक्शन मिल सके। कहीं लॉ नहीं है बट ये गाइडलाइंस अब फॉलो हो रही हैं एट एवरी वर्क प्लेस। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सेम सेक्स रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो अभी हमारे पास कोई स्पेशल एक्ट या कुछ ऐसा कुछ नहीं आया जो इसको लीगलाइज कर रहा है, बट इंटरप्रिटेशन है। जहाँ पे हमने इसको क्रिमिनलाइज कर रखा था वहाँ पे हमने उसको अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अलाउ कर दिया है। सो दिस मीन्स ऑल बिकेम बाइंडिंग लॉ बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 141 एनफोर्सिएबल थ्रू आउट द इंडिया विदाउट द नीड ऑफ सेपरेट लेजिस्लेशन। अलग से कोई एक्ट पास नहीं कर रहे हैं, इन लॉज के ही, इन केसेस के ही इंटरप्रिटेशन से आगे के जो सिस्टम्स हैं उनमें चेंजेस लेके आ रहे हैं। Now comes Article 141. Here is the important note that it is transforming every Supreme Court judgment into a living law, क्योंकि it is evolving with the evolution of the society and it is instantly applicable, uniformly binding and enforceable in every corner of India. This means most powerful precedent system in the world, कि हमारा जो सबसे एपेक्स कोर्ट है उसी के जो डिसीजंस हैं वही हमारे लिए आगे के फॉलो अप्स हैं जो दूसरे हाई कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट है वो उसको अपने कॉग्निजेंस में लेगा जब सिमिलर केसेस को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी दूसरे कोर्ट्स के ऊपर क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी विल बी कि दूसरे कोर्ट्स उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। दिस मीन्स 142 कहता है पावर्स to do complete justice. This is enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to pass discovery etc. यानी सुप्रीम कोर्ट का अगेन एक पावर है कि वो अपने जब जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है तो वो किसी भी तरह का डिक्री या किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकता है। अब ये ऑर्डर क्यों पास करेगा? ये जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं ये होंगे फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर, मतलब किसी भी इशू को लेके विच इज़ पेंडिंग बिफोर इट, अब उसके सामने जो भी पेंडिंग है, एंड एनी डिक्री और ऑर्डर मेड shall be enforceable throughout in India in such manner as may be prescribed by parliament। मतलब वो उसका जो इफेक्ट है वो ऐसा होगा जैसा कि उस ऑर्डर को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, जिसका इफेक्ट जो लॉ ऐसे होगा जैसे किसी लॉ को पास किया गया है बाय पार्लियामेंट ओनली। अब देखो ये क्या है, दिस पावर इज इनहेरेंट, प्लेनरी एंड नॉट सर्कमस्क्राइब्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट। ये कहीं पे किसी दूसरे एक्ट में मेंशन नहीं है, बट 142 का जो जुरिस्डिक्शन है इसको ये करेगा क्या, इट विल फिल, ये जुडिशरी को हम पावर क्यों दे रहे हैं, इट विल फिल द लेजिस्लेटिव गैप्स टू इंश्योर दैट कंप्लीट जस्टिस इज डन। क्योंकि कई बार क्या है कि जो फ्रेमर्स होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, उनसे भी बीच बीच में कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, तो उन्हीं लूप होल्स को फिलअप करने का काम ये कोर्ट करता है वाइल डिसाइडिंग द केसेस।
अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई बार इस चीज़ में अपने मैटर्स को डिसॉल्व करने के लिए, कई बार रिजॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया है, जैसे डिसॉल्विंग मैरिजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल बैकग्राउंड। ये पार्लियामेंट ने जब इसको इनैक्ट किया था, इससे पहले ही जो कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को अप्लाई कर चुका था अपने केसेस में, जैसे ऑर्डरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इन एम सिद्दीकी वर्सेस वी महंत सुरेश दास 2019। इस केस में भी जो ऑर्डर किया था कंस्ट्रक्शन का वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ द स्पेशल एक्ट, ग्रांटिंग कस्टडी इन चाइल्ड राइट्स केसेस एंड इम्पोजिंग कंडीशंस इन कंसेंट डिक्रीज इन लैंडमार्क इन्वायरमेंटल मैटर्स। ये सब जो पार्लियामेंट से आया, ये बाद में आया है, बट उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन देना शुरू कर दिया था। उसी बेसिस पे जो ग्राउंड्स, रिकमेंडेशंस या जो एक तरह से कह लो कि जो सजेशंस बनते हैं, उन्हीं बेसिस पे पार्लियामेंट आगे एक्ट बना देता है। इन यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी केस था, वहाँ पे 142 को यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने और अपनी पावर का यूज़ किया था टू अप्रूव अ सेटलमेंट एंड क्वैश क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। रीज़न क्या था? कॉन्ट्रोवर्शियली बट डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेटिंग द लिमिटलेस रीच ऑफ दिस प्रोविजन, कि यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कैंसिल करके जो सेटलमेंट का अमाउंट था उसको डिसाइड किया था। ये जो पावर है, दिस इज़ ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सप्लीमेंट के लिए यूज़ की जाती है, अगेंस्ट नहीं होगी किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वाज क्लैरिफाइड इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998। तो एक तरह से एडिशनल पावर है। नेक्स्ट आता है 144। 144 टॉक्स अबाउट ऑल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितनी भी आपकी सिविल जुडिशियल अथॉरिटीज़ होंगी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स कि आपको जितने भी आपकी अथॉरिटीज़ हैं मस्ट असिस्ट सुप्रीम कोर्ट। इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव, इट इंक्लूड्स पुलिस, इट इंक्लूड्स ट्रिब्यूनल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, एवरीथिंग, ऑल अथॉरिटीज़। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्म फोर्सेज ऑफ कोर्स इन एप्रोप्रिएट केसेस, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। मतलब कोई भी अथॉरिटी ये क्लेम नहीं करेगी कि हमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, इस ड्यूटी से हमें कंप्लाई नहीं करना। दैट मीन्स कि ये है ही नहीं, ये प्रोविज़न ही नहीं है। यू हैव टू बी बाइंडिंग बाय सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स एंड जजमेंट, नॉट ओनली ऑन वर्ड्स ऑन पेपर, बट दीज आर बैक्ड बाय फुल इंस्टीट्यूशनल फोर्स ऑफ इंडियन स्टेट। और ये इन सारी अथॉरिटीज़ का काम है उसको अप्लाई करवाना। अगर आप इस चीज़ से इनका नॉन कंप्लाइंस करते हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं, तो नॉन कंप्लाइंस विल अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इसका एक स्पेसिफिक एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कैन एनफोर्स ओन इनहेरेंट कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन और पनिशमेंट दे सकता है। दिस इज़ द रीज़न कि दिस इंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, और उसका कंटेम्प्ट ना हो, उसकी बात मानी जाए। दिस हैज़ टू बी लाइक पुट ऑन बाय आर्टिकल 144। तो अगर टुगेदर हम इन दोनों को इन्वॉल्व कर दे, कंबाइन कर दे 142 एंड 144, दिस मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के पास 142 में पावर है कि वो किसी भी ऑर्डर को पास कर सकती है फॉर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट जस्टिस, एंड 144 इज़ दैट एवरी आर्म ऑफ द स्टेट इज़ ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट ऑर्डर। अगर इसको कंबाइन कर दो तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एडवाइजरी या एडजुडिकेटरी बॉडी नहीं है, बट इट इज़ ट्रूली अ सॉवरेन जुडिशियल अथॉरिटी केपेबल ऑफ इफेक्टिवली कंपेलिंग कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। मतलब आपको कंपलसरी उस चीज़ को फॉलो करवा सकती है इन कंप्लायंस विद ऑफकोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको लेके। अगर इन प्रैक्टिस की बात करें तो जो भी इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग जो भी हमारे रिफॉर्म्स हैं, एंटी करप्शन डायरेक्शंस हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उन पे 144 को यूज़ किया जा चुका है। नाउ कमिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अभी तक वी आर डिस्कसिंग कि सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, इट मेंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इट इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, इसकी वजह से वी आर सेफ गार्डिंग द सोल ऑफ इंडियन रिपब्लिक, राइट। और ये जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं 124 to 147, ये
इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी जुडिशरी, एक ऐसी बॉडी को क्रिएट किया है विच इज़ इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट, एक्सेसिबल एंड सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस एंड एनी अदर मैटर रिगार्डिंग टू द लॉ। अब ये इसका जो डिज़ाइन क्रिएट किया गया ये इसी हिसाब से है कि जितने भी हमारे जितने भी जजेस हैं उनके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें, जैसे उनकी सैलरीज़ हो गई, उनका रिमूवल हो गया, उनका पोस्ट रिटायरमेंट जो बार है वो हो गया, तो इन चीज़ों को हम इन फाइनेंशियल प्रेशर्स या जो भी चीज़ें उस पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करने में आती हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये किसी भी तरह का बैरियर क्रिएट नहीं करेंगी वाइल दे आर focusing on the interpretation of the constitution and they are giving the justice to the other people. And when it comes to supreme in law, this means कि through article 141 and 136 जितने भी जो judgments होंगे those are final and authoritative और ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में अप्लाई किए जाएंगे. इट विल बी बाइंडिंग ऑन एवरी कोड अक्रॉस द नेशन और ये किसी भी तरह का स्कोप हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो सिविल लिबर्टीज़, इन्वायरमेंटल लॉ, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, किसी भी टाइप के अगर इश्यूज़ हैं, चाहे जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, फेडरल बैलेंस, कंप्लीट जस्टिस, हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट विल बी हैविंग द फ्लैग ओवर इट. नेक्स्ट आता है गार्जियन ऑफ राइट्स. अगर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 को कंबाइन कर दो तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकती है टू चेक द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कि कहीं वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहे. एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसमें एक एड ऑन है जो केशव नंदा भारती केस से आया था, टू चेक ऑन कि हमारे जितने भी बेसिक फीचर्स हैं उनका डिस्टर्बेंस ना हो वाइल अमेंडिंग द प्रोविजंस बाय पार्लियामेंट. नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंप्लीट जस्टिस. हमने अभी पढ़ा दैट आर्टिकल 142 एंड 144 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देते हैं दैट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऑर्डर को पास कर सकता है और उसका जो टेरिटरी है दैट इज़ इंडिया के ऊपर ओवरऑल उस टेरिटरी में इन चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा. एंड एवरी कोर्ट हैज़ टू फॉलो द थिंग्स decided by Supreme Court. As said by B.R. Ambedkar, the Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always in the spirit of age. This means that Union Judiciary remains the strongest protector of democracy and constitutional governance in India. So, by this as concluded, I can clearly see this that we are having the complete understanding of Union Judiciary and you can clearly understand that Union Judiciary is not merely a dispute resolving institution but it is a guardian of constitutional morality, fundamental rights and rule of law. So through these articles from 124 to 144 the Constitution ensures an independent, powerful and accountable judiciary capable of protecting democracy against any kind of arbitrary action or any misuse of power. So from judicial review to complete justice under article 142 the Supreme Court of India continues to uphold the spirit of the Constitution and protects the rights of every citizen of India. So the Constitution survives not only because it is written in law books but because the judiciary ensures its values remain alive in the nation. Thank you for watching. If you found this video helpful, like, share and subscribe for more detailed constitutional law content. Thank you so much.